Hello everyone, I will discuss about supramolecular chemistry. In this video, I will cover two topics. First is intro about supramolecular chemistry. Second is molecular recognition. I will cover all the topics of this subject as per the MSc chemistry syllabus. First, I will discuss what is supramolecular chemistry. Before discussing supramolecular chemistry, chemistry has two important branches. First is molecular chemistry, which studies the molecule themselves or chemistry of covalent bond formation. Second is supramolecular chemistry, which studies the interaction between the molecules or chemistry of non-covalent bond formation. Covalent bond means sharing pairing of electrons and non-covalent bond formation means not sharing pairing of electrons. So in this video, I will discuss about supramolecular chemistry. So I will talk about chemistry of non-covalent bond formation. फर्स्ट व्हाट इज सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री केमिस्ट्री बियॉन्ड द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की जो पीछे की केमिस्ट्री होती है मेन उसको स्टडी करते हैं सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री के अंदर सेकंड पॉइंट केमिस्ट्री ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूलर असेंबलीज केमिस्ट्री ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड मींस सुप्रामोलिकुलर सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स गेस्ट और होस्ट दो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हेल्ड होते हैं टुगेदर आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक होते हैं टुगेदर किसके थ्रू नॉन कोवलेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के थ्रू Next point, chemistry of non-covalent bond formation already discussed and last point non-molecular chemistry. Supramolecular chemistry को हम non-molecular chemistry भी बोल सकते हैं. Next topic, molecular recognition. First, what is molecular recognition? In the supramolecular assemblies, the components that is guest and host match both sterically and electronically so that the components molecules can recognize each other. This leads to molecular recognition. मीन्स सुप्रामोलिकुलर असेंबली के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं गेस्ट एंड होस्ट उनका मैच होना बहुत स्टेरिकली और इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स की प्रॉपर्टी जो होती है इनकी रिलेटेड होती है शेप एंड साइज एंड रिएक्टिविटी की जब जितना ज़्यादा गेस्ट और होस्ट का साइज और शेप जितना ज़्यादा सिमिलर होगा उतना ज़्यादा उनकी रिएक्टिविटी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी जिसके कारण सो डेट कॉम्पोनेंट मॉलिक्यूल्स कैन रिकॉग्नाइज ईच अदर जिसके कारण जो कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे रिकॉग्नाइज मींस एक्सेप्ट करेंगे दिस लीड्स टू मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन वहाँ पे फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन का दिस इज व्हाई द केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन इज आल्सो नोन एज द गेस्ट होस्ट केमिस्ट्री इसी को केमिस्ट्री जो होती है मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन को इसी को हम क्या बोल सकते हैं गेस्ट होस्ट केमिस्ट्री नेक्स्ट सुपर मॉलिक्यूल्स एंड सुप्रामोलिक्यूलर assemblies both word have same meaning. The large and complex molecules or biomolecules are described as the supermolecules. Means large complex biomolecules जो होते हैं उन्हीं को हम supermolecules बोलते हैं. In second point is supramolecular chemistry. The supramolecular assemblies developed from the non-covalent intermolecular forces are also described as the supermolecules. Supramolecular chemistry के अंदर जो supramolecular assemblies होती हैं वो develop होती है non-covalent intermolecular forces से जो कि explain करती हैं the supermolecules को. Next topic, the lock and key principle is supramolecular assemblies and molecular recognition. Molecular recognition का ये सब topic होता है lock and key principle. First point, in the supramolecular system, the attractive forces operate efficiently when the receptor provides a suitable cavity or site that properly matches both electronically and sterically with the substrate. रिसेप्टर मींस दैट इज होस्ट रिसेप्टर को हम होस्ट बोल सकते हैं सबस्ट्रेट को हम गेस्ट बोल सकते हैं सुप्रामोलिकुलर सिस्टम के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स जब भी इजीली ऑपरेट हो पाएंगी जब इफिशिएंटली जब रिसेप्टर एक सुटेबल कैविटी प्रोवाइड करेगा जो कि प्रोवाइड करेगा किसको सबस्ट्रेट को मींस गेस्ट को प्रोवाइड करेगा जो कि प्रॉपर्ली मैच होने चाहिए उनका शेप और साइज दोनों का प्रॉपर्ली मैच होना चाहिए होस्ट का और गेस्ट का मींस इलेक्ट्रॉनिकली और स्टैटिकली उनकी रिएक्टिविटी मैच होनी चाहिए तो उतना ज़्यादा इजीली अट्रैक्टिव फोर्स हमारा क्या होगा ऑपरेट होगा Second point, in the guest host molecular assembly, the molecular components must maintain the proper complementarity both electronically and sterically. गेस्ट होस्ट मॉलिक्यूलर असेंबली के अंदर जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स हैं उनका मेंटेन करना बहुत जरूरी है प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिकली एंड स्टेरिकली शेप उनका प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपर एडजस्ट होने चाहिए प्रॉपर फिट होने चाहिए उनका प्रॉपर मैच होना चाहिए गेस्ट प्लस होस्ट गिव्स गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स इसी को हम क्या बोलते हैं सुप्रामोलिकुलर असेंबली जो हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इसी को बोलते हैं सुप्रामोलिकुलर असेंबली आई विल एक्सप्लेन with the help of diagram. Figure A represents supramolecular chemistry. मॉलिकुलर केमिस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पे टू कंपाउंड्स लिए हैं एक्स और वाई यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एक्स वाई यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पे कोई कैविटी का कुछ
यहाँ पे कोई कैविटी का डिस्कशन नहीं होता मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे XY निकल जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये हमारा ये कंपाउंड बनता है। इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। अब ये रिसेप्टर की तरह एक्ट करेगा, दैट इज जिसको हम होस्ट बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जो गेस्ट आएगा, जो इनकमिंग गेस्ट आएगा, वो इसी शेप का होना चाहिए। ये जो कैविटी प्रेजेंट है रिसेप्टर के अंदर, इसी ये लाइक स्क्वायर शेप में और ये लाइक ट्रायंगल शेप में, तो इसी शेप में गेस्ट जब हमारा आएगा, जब भी वो रिसेप्टर के साथ इजीली फिट हो जाएगा, जब वो स्टिक हो जाएगा टुगेदर, तो ये फॉर्म होता है गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, सुप्रा मॉलिक्यूल। तो दिस इज अ रिसेप्टर एंड ये जो ब्लैक है ये हमारा क्या है, गेस्ट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट फिगर रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर यूज फॉर मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। डिफरेंट कैविटीज आपको यहाँ पे दिख रही है, डिफरेंट कैविटीज और डिफरेंट शेप और साइज के रिसेप्टर्स हम यूज करते हैं। डिफरेंट मैक्रो पॉलीसाइक्लिक रिसेप्टर्स हम यहाँ यूज करते हैं फॉर मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन के लिए। फर्स्ट है जैसे मैक्रो मोनोसाइक्लिक, यहाँ पे ओनली एक ही सर्कल है। यहाँ पे बाईसाइक्लिक, मैक्रो बाईसाइक्लिक, सिलेंड्रिकल मैक्रो ट्राईसाइक्लिक, स्पेरिकल मैक्रो ट्राईसाइक्लिक। स्पेरिकल मतलब बॉल शेप में, सिलेंड्रिकल स्लेंडर शेप में। यहाँ पे 3 सर्कल है, 1 2 एंड 3। एक्स रिप्रेजेंट करता है ब्रिज हेड एटम को। Fourth point, the stability of a supramolecular system, that is receptor substrate assembly, depends on the degree of stereoelectronic fit among the components. Supramolecular system की stability depend उसमें करती है कि जितना ज़्यादा guest और host आपस में जितना easily उनका shape जितना ज़्यादा match करेगा, जितना ज़्यादा उनकी reactivity match करेगी, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, stereoelectronic fit होगा, और उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, हमारा stable होगा। तो stereoelectronic fit मतलब उसकी geometry जितनी ज़्यादा match करेगी, उतना ज़्यादा उनकी stability क्या होगी, increase होगी supramolecular compounds के और system की। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, इन द सुप्रामोलिकुलर सिस्टम द लॉक एंड की प्रिंसिपल इज फॉलोड। सुप्रामोलिकुलर सिस्टम के अंदर लॉक एंड की प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल द सिलेक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज अटेन्ड। इस प्रिंसिपल की हेल्प से हमें सिलेक्टिविटी जो होती है एंजाइम की वो अचीव होती है, और ये मेनली कहाँ पर फॉर्म होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के अंदर। लॉक एंड की प्रिंसिपल बिल्कुल सिमिलर होता है गेस्ट होस्ट कॉम्प्लेक्स की तरह। लॉक होता है हमारा, जो लॉक होता है उसमें क्या होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है। मतलब जो की होता है, की के लिए भी क्या होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरह के लॉक हम डिफरेंट लॉक्स देखते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट कीज होती है। हर एक डिफरेंट हर एक लॉक की स्पेसिफिक की होती है ना, तो डिफरेंट शेप्स की होती है। तो वो की जब भी लॉक के अंदर लग पाएगी, जब वो लॉक की जो कैविटी है, जो उसकी शेप है, उसी की जब सेम जो की जो शेप है, जब भी उसके अंदर फिक्स हो पाएगी, जब वो दोनों आपस में मैच करेंगे। ओके, जब वो क्या नाम है, आपस में उनकी कैविटी दोनों की मैच करेगी, लॉक की और की। This is all about for molecular recognition and intro about supramolecular chemistry. If you have any doubt or any query, please ask in comment box. Thank you so much.